Welcome to my channel, CA Joyam. The Maharashtra stamp duty amnesty extension on first phase has been announced. Happy February. 1st February is the budget day, but this is a breaking news. The Maharashtra Mudra Shulk Abhay Yojana, that is the Maharashtra Stamp Duty Amnesty 2023-24, जिसका फेज 1 31 जनवरी को एंड होने वाला था, उसको एक महीने से एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसी में मैक्सिमम वेवर है 100% एंड 80% ऑफ द मेन स्टैम्प ड्यूटी एज वेल एज द पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट ऑन द पेंडिंग स्टैम्प ड्यूटीज। तो फेज 1 एक्सटेंड करके 29 फरवरी कर दिया गया। फेज 2 विल बी मार्च, बट दैट इज whether it is extended to April or not will be arrived at later, but now the phase 1 has been extended to 29th February 2024. Take maximum benefit of the phase 1. And to just recap, I have included my PowerPoint presentation also. Have a nice weekend. On Saturday we'll be back with the union budget amendments. The eligible documents for availing the stamp duty amnesty, the guidelines are: it should be executed on stamp papers from government recognized vendors and paid stamp duty through chief controlling revenue authorities competent authorities। मतलब वो तेलगी वाला जो स्टैम्प पेपर है उस पे अगर किए होंगे तो आप ये एमनेस्टी नहीं ले सकते। फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स पे नहीं ले सकते। जबरदस्ती साइन कराए डॉक्यूमेंट्स अगर प्रूव होता है तो उस पे नहीं ले सकते। अब इन एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स है अलॉटमेंट लेटर्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स ईदर अनस्टैम्प्ड और ऑन प्लेन पेपर्स। ये एमनेस्टी इज ऑन डेफिसिट स्टैम्प ड्यूटी पेड रजिस्टर्ड। तो अलॉटमेंट लेटर, शेयर सर्टिफिकेट्स, ये सब आप एमनेस्टी स्कीम में अवेल नहीं कर पाएंगे। नाउ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या कवर्ड है इसमें, जिसके लिए आप एमनेस्टी स्टैम्प ड्यूटी का ले सकते हैं। इट विल बी डीड ऑफ सेल ट्रांसफर, lease, sale certificate, agreement for sale, gift deed, release deeds, mortgage, transfer of tenancy, if it is a allotted flat from MADA, SIDCO or SRA, or premises in societies under deemed conveyance which needs to be converted to full conveyance, development agreement for sale, documents for mergers or restructuring, documents by MADA, SIDCO or municipal corporations, MIDC or SRA. For these documents, you can avail the amnesty. What kind of properties? It can be a residential, it can be a non-residential, or it can be industrial. So for these categories of property and for all these documents, you can avail the amnesty. The scheme is applicable in two phases. The phase 1 will be covered from 1st December 2023 to 31st January 2024. Phase 2, 1st February 2024 to 31st March 2024. So you can avail the amnesty in these two phases. Of course, the percentages of amnesty are different for both the phases. Now, instruments are categorized as executed between 1st January 1980 to 31st December 2000। मतलब 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 2000 और 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2020। ये दोनों कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एमनेस्टी के लिए एप्लीकेबल है। Now, for instruments executed from 1st January 1980 to 31st December 2000, अगर आपने फेज 1 में सबमिट किया मतलब 1 दिसंबर 2023 से लेके 31 जनवरी 2024 तक, और अगर ड्यू स्टैम्प ड्यूटी पेएबल 1 रुपए से 1 लाख है तो 100% वेवर है स्टैम्प ड्यूटी में भी, और पेनल्टी और स्टैम्प ड्यूटी दोनों पे 100% वेवर है। अगर आप स्टैम्प ड्यूटी जो है फेज 1 में 1 लाख 1 से ऊपर है तो 50% स्टैम्प ड्यूटी में वेवर है और पेनल्टी पे 100% वेवर है। अगर फेज 2 में आप ये सबमिट करते हैं मतलब 1 फरवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक, 1 रुपए से 1 लाख में स्टैम्प ड्यूटी में 80% वेवर है, पेनल्टी पे 80% वेवर है। 1 लाख के ऊपर अगर है तो स्टैम्प ड्यूटी में 40% वेवर है और पेनल्टी में 70% वेवर है। तो ये एमनेस्टी लेके आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेगुलराइज कर सकते हैं। और
for instruments executed between 1st January 2001 to 31st December 2020। अगर आप फेज 1 में सबमिट करते हैं और पेएबल स्टैंप ड्यूटी 1 रुपए से 25 करोड़ तक है, तो स्टैंप ड्यूटी में 25% वेवर है, मतलब 25% डिस्काउंट है। 25 करोड़ के ऊपर अगर है तो 20% स्टैंप ड्यूटी में डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब पेनल्टी जो है, अगर 25 लाख से कम है तो 90% वेवर, 25 लाख से ज्यादा है तो सिर्फ 25 लाख ही लिया जाएगा, और अबाउट 24 करोड़ कैटेगरी में पेनल्टी सिर्फ 1 करोड़ ही लिया जाएगा, और अगर 50 लाख से कम है तो 80% वेवर मिलेगा। सेम दिस विल बी रिवाइज्ड इफ यू आर इन फेज 2, 1 to 25 करोड़ स्टैंप ड्यूटी में 20% वेवर मिलेगा, अबाउट 25 करोड़ में 10% वेवर मिलेगा, एंड पेनल्टी में भी आपको एमनेस्टी मिलेगा। अब अगर ये एमनेस्टी नहीं लिए रहते तो जिस दिन से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ पेनल्टी 2% पर मंथ अभी तक लिया रहता, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज 4 times द डेफिशिएंट स्टैंप ड्यूटी। सो इट इज बेटर you go in for this amnesty. If in case of any doubt, contact me on my given mail IDs.